Hello students, today I discuss a new topic in the fluid machinery is the pressure rise in impeller of a centrifugal pump। हम इसमें ये बताएंगे कि कितना प्रेशर राइज होता है इम्पेलर में सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ये एक डेरिवेशन है जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हियर द प्रेशर राइज इन द impeller of a centrifugal pump when frictional and other losses in the impeller are neglected is 1/2g in bracket Vf1 square plus U2 square minus Vf2 square cosec square phi, where Vf1 and Vf2 are the velocity of flow at inlet and outlet respectively. U2 is tangential velocity of flow at outlet and phi is Vane angle at outlet। तो इस प्रूफ को हम लोग करने जा रहे हैं कि ये प्रूफ कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग इम्पेलर के इनलेट पे और इम्पेलर के आउटलेट पे दो क्रॉस सेक्शन या पॉइंट ले लेंगे, 1 1 एंड 2 2 और सिंपली 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो हियर वी कैन राइट एज suffix 1 represents the value at inlet of the impeller and suffix 2 represents the values at outlet of the impeller, and applying the Bernoulli's theorem at inlet and outlet of the impeller we get the result P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 is the inlet energy, and the outlet energy is P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2, and the work done by the impeller on water is VW2 U2 by G. This value is minus from the outlet of the outlet energy. Then we get the input is equal to output P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2 minus VW2 U2 upon G. This relation is derived when all the losses is neglected in the impeller of a pump. Here the inlet and outlet of the impeller are the same height, then Z1 is equal to Z2, then cross out the value of Z1 and Z2, we get the result P1 upon rho g plus V1 square upon 2g is equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g minus VW2 minus VW2 U2 by G. Here P2 by rho g minus P1 by rho g is pressure rise in impeller, and we get the pressure rise in impeller is V1 square upon 2g minus V2 square upon 2g plus VW2 U2 by G. It's equation 1. Here is the inlet and outlet velocity triangle of a centrifugal pump. IBT में हम लोग देख रहे हैं कि ABC is a inlet velocity triangle. Here V1 is equal to Vf1 and outlet velocity triangle is ZED. So you have to find out the value of tan phi in triangle DEF. DEF में से हम लोग tan phi की वैल्यू निकालेंगे और tan phi की वैल्यू आएगी Vf2 अपॉन U2 माइनस VW2। अब यहाँ से हम लोग VW2 की वैल्यू निकालेंगे। VW2 की वैल्यू कितनी आएगी? U2 माइनस Vf2 cot phi। Again we can applying the Pythagoras theorem in triangle GFD, V2 square is equal to VW2 square plus Vf2 square. Put the value of VW2 here, and we get the result of V2 square is U2 square minus 2U2 Vf2 cot phi plus Vf2 square cosec square phi. Put all the values of V1, VW1, V2 square in equation 1. Hence the pressure rise in impeller we get is 1/2g in bracket Vf1 square plus U2 square minus Vf2 square cosec square phi। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल को कैसे करना है, क्या इसका तरीका है करने का। फाइंड द राइज इन प्रेशर इन द impeller of a centrifugal pump through which water is flowing at the rate of 0.01 meter cube per second. The internal and external diameter of the pump are 15 centimeter and 30 centimeter respectively. The width of the impeller and inlet and outlet are 1.2 centimeter and 0.6 centimeter. The pump is running at 1500 rpm. And the water enters the impeller at inlet and impeller vane angle at outlet is 45 degree. Neglect all the losses. तो हमारे पास सारी वैल्यूज इसमें दी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग को ये लिखना है कौन कौन सी वैल्यू दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्यू दिया हुआ है डिस्चार्ज 0.01, इंटरनल डायट दिया हुआ D1 इज 0.15 मीटर, D2 की वैल्यू दी हुई है 0.30 मीटर, B1 की वैल्यू दी है 1.2 सेंटीमीटर, B2 की वैल्यू दी है 0.6 सेंटीमीटर, कैपिटल एन दिया है 1500 आरपीएम, फाई दिया है 45 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर राइज इन इम्पेलर। क्लियर? देखें देखिए ये सब वैल्यूज हम लोग को दी हुई हैं, आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Vf1। Vf1 कैसे निकालेंगे? Q अपॉन पाई D1 V1।
पाई डी वन वी वन से हम लोग वी एफ वन की वैल्यू निकालेंगे। वी एफ वन की वैल्यू कैसे आएगी, 0.01 अपॉन पाई 0.15 इंटू 0.012, we get the result of VF1 is 1.768 meter per second. Again we have to find out the velocity of flow at outlet VF2. Again the same value here, 1.768 meter per second. U2 we have to find out again, pi d2 n by 60. Here U2 is 23.56. Put these values in the pressurized formula 1 upon 2g VF1 square plus U2 square minus VF2 square cosec square phi, and we get the result of pressure rises 28.13 मीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन उसी डेरिवेशन पर बेस्ड है। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और अगर हम चाहें तो उस तरीके से ड्राइव भी किया जा सकता है। क्लियर, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स कर्व्स। द करेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप आर डिफाइंड एज दोज कर्व्स व्हिच आर प्लॉटेड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट ऑन द सेंट्रीफ्यूगल पंप। कई सारे हम लोग टेस्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर, तब जाके कुछ हम लोग को आउटपुट और रिजल्ट्स आते हैं, उसी से हम लोग ये कर्व्स को प्लॉट करते हैं। ये कर्व्स जनरली हम लोग को क्या बताते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप का, उसकी वर्किंग कैसी चल रही है अंडर डिफरेंट लोड कंडीशंस। स्पीड पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारे जो पंप है उसकी वर्किंग कैसी है। सम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स कर्व्स हैं हमारे पंप के। सबसे पहला है मेन करेक्टरिस्टिक्स, सेकंड ऑपरेटिंग, थर्ड इज कांस्टेंट एफिशिएंसी और मुश्किल कर्व्स। तो पहले हम लोग जानेंगे मेन करेक्टरिस्टिक कर्व्स में क्या है। मेन करेक्टरिस्टिक कर्व में पावर और स्पीड के बीच में है, मैनोमेट्रिक हेड और स्पीड के बीच में कर्व है, और थर्ड है हमारा डिस्चार्ज और स्पीड के बीच में। देखो पावर वाला फॉर्मूला हम लोगों ने मॉडल टेस्टिंग में ट्राइव किया था, P अपॉन d5 NQ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हियर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NQ। द फॉर्मूला इज रिलेट विद द क्यूबिक पॉलिनोमियल कर्व, देयरफॉर द पावर और स्पीड के बीच में जो कर्व ड्रॉ किया है वो क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कर्व है। अब हम बात करते हैं HM और स्पीड के बीच में, मैनोमेट्रिक हेड और स्पीड के बीच में। वी नो द रिजल्ट ऑफ √HM by dn is constant is a model testing formula. Here manometric head is directly proportional to n square. It is a parabolic formula. Then under the curve between the manometric head and the speed is parabolic curve. The third one is discharge versus speed. We know the result of discharge is Q upon d cube n is constant. Q is directly proportional to n, under the HM is constant. It is a linear curve, directly proportional है तो linear है, तो एक straight line शो होगी। अब नेक्स्ट कर्व इज द ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व। जितनी भी ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व है उसमें एक खास बात क्या है कि हमारी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। क्लियर, तो फर्स्ट कर्व है इफिशियंसी और डिस्चार्ज के बीच में। इफिशियंसी डिस्चार्ज की, जब डिस्चार्ज की वैल्यू जीरो है तो इफिशियंसी की वैल्यू भी जीरो रहेगी। देन दिस कर्व शोज ऑन इंक्रीजिंग टाइप कर्व। क्लियर, सेकंड इज द हेड वर्सेस डिस्चार्ज कर्व। अंडर द डिस्चार्ज इज वैल्यू इज जीरो, द हेड इज नॉट अ जीरो वैल्यू, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज टू बी सम HM वैल्यू, and the curve is goes on decreasing downwards, and under the condition speed remains constant. Third curve is input power curve and the output power curve. Under the condition of the discharge versus discharge, and the speed remains constant. In the case of input power curve, when discharge value is 0, the some value of the input power is there, and where no frictional losses is to be considered. Here in the case of the output power, when discharge is 0, therefore output power is P is equal to rho g QH is 0। जब हमारा Q की वैल्यू 0 होगी तो फॉर्मूले में P is equal to rho g QH में अगर हम Q की वैल्यू 0 डालेंगे तो पावर की वैल्यू भी हमको 0 मिलेगी। देन दिस कर्व इज सिमिलर लाइक द इफिशियंसी कर्व इज गोज ऑन इंक्रीजिंग साइड। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट कर्व है कॉन्स्टेंट इफिशियंसी कर्व और द आइसो इफिशियंसी कर्व। ये कैसे प्लॉट किया जाएगा, देखो सबसे पहले हेड और डिस्चार्ज को हमने प्लॉट किया अंडर अ डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द स्पीड N1 N2 N3 N4, जो आपको ब्लैक लाइन में शो हो रहा है। सेकेंडली कर्व है इफिशियंसी और डिस्चार्ज के बीच में, जो भी ब्लैक लाइन में शो हो रहा है अंडर अ डिफरेंट कंडीशंस ऑफ N1 N2 N3 N4। अब हम लोगों ने जो वाइट कलर की लाइन है उसको प्लॉट किया ऊपर हेड वर्सेस डिस्चार्ज के कर्व में, जो कि N1 N2 N3 N4 पर जो कट किया है पॉइंट्स ABCD में। क्लियर, अब उनको हमने एक सिंपली स्केच से हाथ से ड्रॉ किया। जो येलो कलर की लाइंस जो आ रही हैं, इट इज कॉल्ड एज आइसो इफिशियंसी और मुश्चल कर्व्स। क्लियर, दिस येलो लाइंस इज जनरली शोज द कांस्टेंट इफिशियंसी कर्व। क्लियर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। थैंक यू।